Assalamu alaikum dear viewers, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. I hope your preparation will be going good for finance account assistant exam. I had a query from one of the aspirants, sir, how shall we approach economics syllabus for FAA exam? So I went through FAA syllabus. I'm myself economy teacher. I have done masters in economics, so I thought if it could be helpful to any aspirant who is preparing honestly for this exam, I shall make a video on it. See, I have syllabus right now in front of me. There are certain areas in your syllabus where question can be framed by SSB. What are the important parts in your syllabus that I will discuss here? The first line of your syllabus is Introduction of Economics Basic Concept and Principles. It is more or less a theoretical topic. I don't expect a question will be made there. But the line that you have to focus is fiscal and monetary policy. This is the very important line of your syllabus. So monetary policy you should study carefully, as well as fiscal policy. More important, monetary policy. So in your monetary policy, you have to understand tools of monetary policy, quantitative tools and qualitative tools of monetary policy, or we call them as instruments of monetary policy, like the definition of CRR, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operation, marginal standing facility, or qualitative tools, margin requirement, credit rationing, direct action, moral suasion. Their definitions you should know. Or if they can go a bit deeper, how can we control inflation by varying CRR? Shall we increase CRR or we lower CRR? How can we control deflation in an economy through reverse repo rate? So that mechanism you have to understand at your own level. One thing I will tell you, since I can't teach it here because this is a very big topic, it takes 2-3 hours. Whenever there is inflation, we need to increase these rates, whether it is CRR, SLR, bank rate, repo rate. In case of inflation, all rates must be increased. And whenever an economy is facing deflation or depression, at that time these rates are lowered. So that is the small tip I can give you. In case it comes there, you can use at the time of inflation, all rates are to be increased in order to control money supply in the economy, liquidity in the economy. And in order to control deflation or depression in the economy, these rates are lowered in order to promote liquidity and money supply in the economy, so that aggregate demand will increase in the economy and price level will come back. So monetary policy is a very important topic of your syllabus. One question you can expect there it will be made. It's framed by Reserve Bank of India through its monetary policy committee. So that's very important that you will keep into consideration. Sam, they can make a question on fiscal policy. I believe monetary policy is more important than fiscal policy for competitive exams. So fiscal policy, you will look into taxation, government expenditure, public debt or deficit financing. So taxes, you should cover their taxation, how taxation is used as a tool to reduce inequalities in the income level. Should we go for progressive taxation or regressive taxation? What are ad valorem taxes, specific taxes, and all? They can ask a question there as well from fiscal policy. And fiscal policy is framed by Government of India. That's the fundamental difference between monetary policy and fiscal policy. Monetary by Reserve Bank of India through Monetary Policy Committee. Fiscal policy is also known as expenditure and revenue policy of the government. It's framed by Government of India itself. Then you have another topic, my dears, that is consumers demand using indifference curve. Indifference curve is very important topic in your syllabus. So you can expect one question on indifference curve. So there are many properties of indifference curve, like it is convex to the origin. Two indifference curves do not intersect. It is an asymptotic curve. Higher the indifference curve lies, higher the level of satisfaction it represents. Lower the indifference curve, lower level of satisfaction. So you should understand the topic of indifference curve. Why don't two indifference curves intersect? Basically, what is indifference curve? Showing combination of two goods showing same level of satisfaction at all points of indifference curve. So once you will watch any teacher's video, simple video on indifference curve, you will understand that. And properties of indifference curve. I believe one question they will frame on properties. It's a downward sloping curve, it's convex to the origin, they do not intersect. Higher the curve, higher the level of satisfaction. It's an asymptotic curve. Asymptotic curve means neither it will touch x-axis nor y-axis, because indifference curve shows two goods, apple and orange, so they will be on one y-axis and x-axis. We have to purchase two goods, not one good. So it approaches x-axis and y-axis, but it never touches them. That you have to understand. And one important point that can be framed in your question paper is when the consumer will be in equilibrium. Consumer is always in equilibrium when the indifference curve is tangent to budget line. So when slope of budget line is equal to slope of indifference curve, that is the point of equilibrium for the consumer. That can be asked in your exam. Consumer's equilibrium. Slope of budget line is equal to slope of indifference curve, margin rate of substitution, and that's price of x divided by price of y. So
the student who has read inference curve, who has read about monetary policy, he can understand what Ishfaq sir is saying about it. So अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सो इंडिफरेंस कर्व पे क्वेश्चन बना सकते हैं. डिमांड एनालिसिस, दे कैन आस्क question from demand, like elasticity of demand, greater than 1, less than 1, or what are inferior goods, what are given goods, about that. So basic things of demand, they can make a question there. Then you have two important theories, marginal productivity theory, Ricardian theory. एक क्वेश्चन बनेगा दो theories में से, बहुत ही सिंपल है, सीधे यूट्यूब पे वीडियो को ही देखना है, what is Ricardian theory of rent. So it basically speaks about different types of land. जो लैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है उसका रेंट उतना ज़्यादा बनता है, ये रिकार्डो बोलता था. So the land that has no productivity at all, it will not have any rent. The land that is more productive, तो उसका उतना ज़्यादा रेंट बनता है. ऐसे ही marginal productivity theory by J.B. Clark. So we have 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. So how shall we give them their return? यानी कि labor gets wages, land gets rent, capital gets interest, and entrepreneur gets profit. How shall we determine कि इस लेबर को कितना वेज देना है? So as per marginal productivity theory of J.B. Clark, the more productive labor is more wages he should deserve, he should get. तो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एक लेबर, जितना ज़्यादा ये काम करता है उतना ज़्यादा इसका वेज होना चाहिए. तो अगर किसी टीचर की डिमांड बहुत है मार्केट में, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो बेचारा डिजर्व करता है उसी हिसाब से अपना वेज. अगर कोई नया टीचर आया है मार्केट में, अभी तक उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, ही डिजर्व्स लिटिल बिट लोअर वेजेस देन द सीनियर टीचर जिसका बहुत नाम है, जो बहुत अच्छा पढ़ाता है बच्चों को. सो प्रोडक्टिविटी मीन्स मैं कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ टोटल प्रोडक्शन में. तो जितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, उसी हिसाब से मेरा वेज मिलना चाहिए. तो प्रोडक्टिव थ्योरी वही बोलता है, जितना कैपिटल ने मदद किया टोटल प्रोडक्शन में, उतना उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए. जितना लैंड ने कंट्रीब्यूशन किया टोटल प्रोडक्शन में, उतना उसका रेंट बनना चाहिए. सो प्रोडक्टिविटी मीन्स कि हाउ मच आई कंट्रीब्यूट टू टोटल प्रोडक्शन, एज पर दैट माई वेज, माई रेंट शुड बी गिवन. दैट इज द फंडा ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम मार्केट. बहुत ही ईजी यूनिट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. सो यू हैव टू सी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, large number of buyers and sellers selling and buying a homogeneous product. So homogeneous product in perfect competition, one question can be framed there. ऐसे आपको देखना है मोनोपोली क्या होता है, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वेयर देयर इज कंपटीशन अमंग द सेलर्स. जैसे भी हमारा मार्केट है हॉल में, बाहर वाला मार्केट होता है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट. तो ये 2-4 मार्केट्स आपको पढ़ने हैं, इनके फीचर्स आपको देखने हैं कि ओलिगोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक में क्या फ़र्क है, मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली में क्या फ़र्क है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ़र्क है. तो बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. स्पेशली द शेप ऑफ डिमांड कर्व्स अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, लाइक परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल कर्व होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. दैट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लेकिन बहुत स्टीप कर्व होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. दैट कैन बी आस्क्ड. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकिन ग्रेटर देन इलास्टिक, वो ज़्यादा फ्लैट होती है. मोनोपोली में स्टीप होती है बिकॉज बिग चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन डिमांड. मोनोपोलिस्टिक में स्मॉल चेंज इन प्राइस, बिग चेंज इन डिमांड. मार्केट में कितनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट के, तो वो करो आप को आ सकता है एग्जाम में. व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड करो इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्रेटर देन इलास्टिक, फ्लैटर कर्व. व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड करो इन मोनोपोली, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट लेस इलास्टिक, इट इज अ स्टीपर कर्व. एंड द डिमांड करो इन केस ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज अ किंक्ड कर्व, इट इज ग्रेटर देन 1 इन अपर पोर्शन एंड लेस देन 1 इन लोअर पोर्शन. एक किंक्ड कर्व बनता है ओलिगोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व. तो डिमांड कर्व पे वो क्वेश्चन बना सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट. तो मैं नटशेल में आपको बोल रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट हु हैज़ वेंट थ्रू इकोनॉमिक्स, वो अंडरस्टैंड कर सकता है. देन वन क्वेश्चन दे कैन फ्रेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन. तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमें 2 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने पड़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन क्वेश्चन डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट दे विल मेक फ्रॉम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. तो वो आप पढ़िएगा प्लीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अगर आपके पास कोई भी 12th का स्टूडेंट है, उसको बताओ कि मुझे आपकी रेफरेंस चाहिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मुझे पढ़ना है. या कहीं से भी अगर किसी भी टीचर के नोट्स आपके पास है, कोई भी इकोनॉमिक्स वाला बच्चा आपके अराउंड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से क्वेश्चन बनेगा. तो उसमें हम 3 डिफरेंट कर्व्स के रिलेशन दिखाते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में. तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स का. तो व्हेन एवर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, टोटल प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज increasing, total product is also increasing. When marginal product is falling, total product increases at a decreasing rate. There are certain relations between total product and marginal product. वहाँ पे क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का. या marginal product और एवरेज प्रोडक्ट के बिटवीन क्या रिलेशन रहता है. व्हेन दे आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग, एमपी कट्स एवरेज प्रोडक्ट एट मैक्सिमम एट द अपर पॉइंट.
तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आपको बस उसके बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, फिर PQLI, HDI, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ डेवलपमेंट से छोटा होता है, ग्रोथ इज़ नंबर, GDP इज़ इंक्रीजिंग, डेवलपमेंट इज़ बियॉन्ड ग्रोथ। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ प्लस सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इन द इकॉनमी। अगर वेलफेयर देखना होगा, अगर वेल्थ देखना, लोग कितने हैप्पी है इकॉनमी में, वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ में खाली हम नंबर्स बोलते हैं, ये लोग अमीर हैं, खुश कितने हैं, वो खुशी आता है डेवलपमेंट में। हाउ मच हैप्पी द इकॉनमी इज़, हाउ मच पीसफुल द नेशन इज़, दैट कम्स इन डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज़ अ बिगर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहाँ पे मे भी क्वेश्चन बना सकते हैं ग्रोथ पे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी थ्योरेटिकल टॉपिक है, आई डोंट एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन देयर। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकॉनमी, डिफिनेशन पता होना चाहिए। मार्केट इकॉनमी फ्री इंटरप्राइज इकॉनमी होता है, डिमांड फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन देयर इक्विलिब्रियम। प्लानिंग इकॉनमी सेंट्रली प्लान इकॉनमी जो हमारी होती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थोड़ा सा देख लेना चाहिए आपको, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हेन इंडियन इकॉनमी वाज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एट दैट टाइम वी वेंट फॉर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में थोड़ा सा आपको देख लेना है एट दैट टाइम क्या किया हमने। Then again question can be asked national income, that's very important, measurement of national income। तो national income के बारे में आपको पढ़ना है, किसी अच्छे टीचर के वीडियोस देखने हैं, like what's the difference between GDP and NDP and GNP, GDP at market price, GDP at factor cost, इनमें क्या फ़र्क होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और नेम ऑफ डिप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के क्या दरमियान क्या फ़र्क होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, वो बेसिक चीज़ें आपको समझ लेने। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, या व्हाट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज़ नेशनल प्रोडक्ट, NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये चीज़ें आपको एक बार पता चली तो आई होप यू विल गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम, या डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम जो है, वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, दे कैन आस्क ए क्वेश्चन देयर एज वेल। तो नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको आपको देख लेना है, टारगेट में रखना है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI बहुत ही इजी टॉपिक है, आई एक्सपेक्ट दे कैन मेक ए क्वेश्चन दियर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, हु इज करंटली गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास है। कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं RBI के, लाइक इट इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, तमाम बैंकों का जो बाफ होता है, तमाम बैंकों का जो हेड होता है, दैट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी बैंक्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऑल द कमर्शियल बैंक्स, लेकिन RBI का काम नहीं होता है प्रॉफिट के लिए, ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए, वेलफेयर ऑफ द कंट्री इसका मेन मोटिव रहता है। यही फ्रेम करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को। इसकी डिफरेंट फंक्शन, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट्स, मनी इशू करता है खुद, तो या RBI का हेड क्वार्टर दैट्स इन मुंबई। तो वो चीज़ें कहीं से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं। RBI कब हुआ था एस्टेब्लिश, 1935, 1 अप्रैल परहैप्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1949, 1969, 1980। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आई एक्सपेक्ट दीज आर द एरियाज वेयर क्वेश्चंस कैन बी मेड। मेरे पास ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, वेरी मच बिजी विद माई क्लासेस UPSC लेक्चर्स, तो वरना मैं ये टॉपिक्स कवर करता इधर ही। लेकिन आई होप अगर कोई बहुत सीरियस बच्चा होगा जिसने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, वो रिलेट कर पाएगा कि सर क्या बोल रहा है। सो आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट एरियाज, मॉनेटरी पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंस का क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी या रिकॉर्डियन थ्योरी, 2 में से एक थ्योरीज पे एक क्वेश्चन आएगा, इनके एजम्पशंस, मार्केट, फार्मर्स ऑफ मार्केट, बहुत ही ईजी यूनिट है, कहीं से भी आप पढ़ोगे आप लोग समझ जाओगे। इनके फीचर्स आपको याद रखने हैं, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, अगेन मैं बोल रहा हूँ TP, MP एंड AP, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इसको कैसे हम मेजर करते हैं, डिफरेंट इंडाइसेस थ्रू विच वी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, PQLI एंड अदर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, नो क्वेश्चन। प्लानिंग, मार्केट इकॉनमी, खाली डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG 1991 थोड़ा पढ़ लेना। नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़, GDP, GNP को, डिप्रिसिएशन को, क्या रिलेशन होता है उनके दरमियान, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो अगर मुझे लग रहा है ये टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे इन दिनों, आई बिलीव स्टूडेंट कैन गेट एट लीस्ट 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। ये एरियाज अगर वो कवर करेगा तो इट इज़ बेटर टू फाइट, इट इज़ बेटर टू रिवाइज दीज कंसेप्ट, गेट 7 मार्क्स, सो दैट यू विल फाइंड यूर सेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव लिस्ट। तो ऐसा ना हो कि आपको खाली 1 या 2 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में, तो ऐसे इंसान बाहर जाता है कॉम्पिटिशन से। सो दीज आर द एरियाज वेयर यू शुड फोकस। माई बेस्ट विशेस आर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मुझे टाइम मिला, एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्राम यू, अगर बच्चों को लगे कि इशफाक सर का कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हमें चाहे ऐसे ही ऑरली ऑन एनी टॉपिक अमंग देम, तो आई विल ट्राई फ्राम माई साइड टू हेल्प यू। कोई भी
भी टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जहाँ पर आपको आधे घंटे या 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन चाहे, वो 1 घंटा मैं कर सकता हूँ, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर किसी को लग रहा है, अगर मुझे ऐसे कमेंट्स आएंगे 10-12 के बच्चों को लग रहा है कि इशफाक सर, क्योंकि मैं यही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को यूपीएससी में, तो आई बिलीव इंशाल्लाह I will try my best to help you there. बाकी my best wishes are to all of you. Just revise things whatever you have read, वही revise करना है, give your best shot. बस यही 10-12 दिन है अब, इंशाल्लाह your paper will go good. You will get success in this exam. My prayers are with you. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.